علم نور ہے، العلم نور ہے، العلم نور۔ آج کل مسلم لڑکیوں کے مرتد ہونے کی خبریں سوشل میڈیا پر بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہوتی ہیں، اور ہمارے مسلم سماج کے نوجوان بزرگ جو بھی سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں وہ بھی ان پوسٹوں کو بڑی تیزی کے ساتھ آگے فارورڈ کرتے ہیں، اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی پوسٹ آئی اور انہوں نے اس کو آگے فارورڈ کر دیا، شیئر کر دیا، تو وہ بری الذمہ ہو گئے۔ ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا، حالانکہ یہ ان کا اپنا اچھا نظریہ رہتا ہوگا، ہو سکتا کہ اس لیے وہ پوسٹوں کو شیئر کرتے ہوں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں تو کوئی تنظیم تحریک اس کے رد عمل میں تیار کی جائے اور اس فیلڈ میں بھی کام کیا جائے، مگر ایسا ہوتا نظر آ نہیں رہا۔ بہت کم ہی تعداد میں لوگ میدان میں آئے ہیں، کچھ تنظیمیں میدان میں آئی ہیں جو اس پر کام کر رہی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی اس پر عمل نہیں کر رہا، کام نہیں کر رہا، مگر جس طرح سے کام کرنے کی ضرورت ہے شاید منصوبہ بندی کے ساتھ اس انداز میں ہمارے یہاں پر ابھی کام نہیں ہو پا رہا۔ جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہماری بہن بیٹیوں کے ایمان کے دشمن ہیں، لٹیرے ہیں، اور بڑے منصوبے کے تحت، سازشوں کے تحت ہتھ کنڈے اپنائے ہوئے ہیں، تو ان کے معاملات یہ ہیں کہ ان کے چاہے پاکھنڈی بابا ہوں تو ان کے بھی اپنے طور طریقے وہ شیئر کرتے ہیں، ان کی کارکردگیوں کو بھی شیئر کرتے نظر آتے ہیں۔ ابھی سوشل میڈیا پر ہی ایک پوسٹ وائرل ہوئی بریلی شریف سے کہ ایک کرشن کمار شرما کے نام سے ایک پاکھنڈی ہے، پنڈت ہے، اور اس نے تقریباً 78 مسلم لڑکیوں کا نکاح غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ کر دیا۔ بڑی تیزی کے ساتھ اس پوسٹ کو وائرل کیا جانے لگا، ہم تک بھی پہنچی، ہمارا بھی دیکھ کر کے پڑھ کر کے اس کو بڑا افسوس ہوا، اور کہ بس یہی سوچتا ہے انسان جب دیکھتا ہے تو کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کا آخر ذمہ دار کون ہے؟ تو ایک سوشل میڈیا پر ہی ایک مولانا صاحب کا میں نے وائس ریکارڈنگ میں ایک آڈیو میں ایک بیان سنا، جس کو سن کر کے مجھے بڑا افسوس ہوا۔ میں نے سوچا کہ اس بات کو میں بھی آپ تک پہنچاؤں، اس کو شیئر کروں، کیونکہ انہوں نے جو کچھ وجوہات اس کی بیان فرمائی ہیں تو وہ واقعی ایسا لگتا ہے کہ اس میں ہمارے اپنے بھی ذمہ دار ہیں۔ جیسے کہ میں آپ کو بتلاؤں، ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ وہ رہا امام صاحب ہی رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ان کے اس طرح کے واقعات اماموں کے ساتھ میں ہوتے ہیں۔ امام صاحب کے پاس میں ایک لڑکی آتی ہے اور وہ آ کر کے کہتی ہے کہ امام صاحب مجھے تعویذ دے دیجئے کہ مجھے فلاں غیر مسلم لڑکے سے محبت ہو گئی ہے کہ میرے گھر والے راضی نہیں ہو رہے ہیں کہ وہ راضی ہو جائیں، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بیان فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے سنا تو اسی وقت میں میرے دل کو بڑی ٹھیس پہنچی، اور میں نے بڑے پیار کے ساتھ میں اس کو سمجھانے کی کوشش کی، ایمان کی اہمیت کے بارے میں اس کو بیان کیا کہ جنت بغیر ایمان کے نہیں مل سکتی ہے۔ جب اس کو بیان کیا تو وہ لڑکی خاموش ہوئی، مگر بات یہ ہے کہ اس کے بعد کی جو اس نے اپنی کہانی سنائی، میں اسی بات کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ بیان کرتی ہے کہ مولانا صاحب میرے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ اب سے پہلے میں ایک تعویذ گنڈے کرنے والے ملا جی ہیں، جیسے کہ جن کے بارے میں آج کل علماء کرام بھی بڑی شد و مت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، ان کی مخالفتیں کرتے ہیں، جو اس طرح کے فرضی بھاڑے اور تعویذ گنڈے کرنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے کہ مذہب اسلام کی شبیہ کو بھی خراب کیا، مسلمانوں کی بھی شبیہ کو خراب کیا، اور مذہب اسلام کو بدنام کر کے رکھ دیا۔ تو اس طرح کے لوگوں کا معاملہ بھی یہ سامنے آ رہا ہے کہ وہ لڑکی بیان کرتی ہے کہ جب میں ان کے پاس میں پہنچی اور ان سے میں نے جب یہ بیان کیا تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہے آپ کا نکاح اس کے ساتھ میں ہو جائے گا، مگر اس میں 1100 روپے لگیں گے کہ میں کلیئر جاؤں گا، اور کلیئر جانے کے بعد میں تمہاری عرضی لگاؤں گا، اور اس کے بعد میں یہ تمہارا کام ہو جائے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے
کہ दाढ़ी वो लगाए हुए है और वो है कि जिसको कौम हमारे यहाँ रहनुमा समझती है, बल्कि यूँ कह लिया जाए कि इमामों से आलिमों से बढ़ कर के उनको समझा जाता कि ये आलिम तो इल्म शरीयत जानने वाले हैं, वो तो तरीक़त वाले हैं, वो तो फ़कीर लोग हैं, ये हैं फ़कीर। ये फ़कीर नहीं है बल्कि पेट के पुजारी हैं और पैसे के आगे ये भी नहीं देखते कि वो अपने ईमान का सौदा करने के लिए जा रही है, एक गैर मुस्लिम के साथ निकाह करने के लिए जा रही है और ये उसमें पैसे लेकर के उसमें सहयोग कर रहा है। बहरहाल 21 दिन का टाइम दिया कि कलियर शरीफ जाऊंगा, 1100 रुपये लगेंगे और आपकी अर्जी लग जाएगी, आपका काम हो जाएगा। 21 दिन के बाद में वो लड़की फिर उनके पास में पहुंचती है, काम नहीं हो पाया क्योंकि घर वाले इधर राज़ी नहीं हो पाए थे। वो बयान करते हैं कि उसके बाद में फिर उन्होंने 1100 रुपये का मुतालबा रखा कि दोबारा अर्जी लगेगी। फिर 21 दिन का उन्होंने टाइम दिया, फिर वो लड़की उनके पास में पहुंचती है, तीसरी मरतबा फिर पहुंचती है। बहरहाल उन्होंने कई मरतबा उस लड़की को लूट लिया लेकिन उसका काम नहीं हुआ और अल्लाह को मंजूर ही था क्योंकि ये कोई फ़र्जी भाड़े हैं, कोई इस तरह से काम तो नहीं होते। अब आप अंदाज़ा ये लगाएं किस बात के लिए जा रहा, 1100 रुपये लेकर के वो कि मैं जाऊंगा कलियर में तुम्हारी अर्जी लगाऊंगा कि तुम्हारा निकाह गैर मुस्लिम के साथ में हो जाएगा। क्या कुरान इस बात की इजाज़त देता कि एक गैर मुस्लिम के साथ में मुसलमान लड़की का निकाह हो जाएगा? अगर कोई निकाह पढ़ भी दे, पढ़वा भी ले, किसी भी तरीके निकाह नहीं हो सकता। निकाह के लिए मुसलमान होना शर्त है। और फिर इस काम के लिए साबिर पाक की बारगाह में जाएं तो क्या साबिर पाक की बारगाह में ये काम होगा कि वो एक मुस्लिम लड़की को गैर मुस्लिम बनाने के लिए जहन्नम में झोंकेंगे? ये आप देखिए, ये सब कुछ फर्जी भाड़ा हो रहा है। और इस तरह के फर्जी भाड़े करने वाले जो तावीज़ गंडे करने वाले लोग हैं, इनके चंगुल में फंस कर के भी हमारी बहुत सी बहन बेटियां वो मुर्तद होती नज़र आ रही हैं। तो एक तो मुझे ये भी लगता है कि इसमें ज़िम्मेदार हमारे यहाँ के इस तरह के फर्जी भाड़े करने वाले जो पैसे के चक्कर में कुछ भी नहीं देखते, वो अपनी बहन बेटियों को गैर मुस्लिमों के साथ में झोंकने के लिए तैयार हैं, जहन्नम में झोंकने के लिए तैयार हैं। पैसे के आगे उन्हें कुछ नज़र नहीं आता। दूसरी बात वो बयान करते हैं, बहरहाल मैंने उसको समझाया और बहुत समझाने के बाद में उसने फिर ये बात कही कि ठीक है, आप मुझे एक ऐसा तावीज़ दे दें कि जिससे कि उसकी मोहब्बत मेरे दिल से निकल जाए। वो बयान करते हैं, बहरहाल मैंने उसको एक तावीज़ दिया, दुआ की अल्लाह से उसके हक़ में, उसके दिल से उसकी मोहब्बत निकल गई। फिर मुसलमान के साथ शादी हुई। आज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ज़िंदगी, वो ईमानी ज़िंदगी गुजार रही है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये कौन हैं इस तरह के लोग हमारे मुआशरे में? गैर तो हमारे पीछे पड़े हुए हैं ही, मगर हमारे अपनों के हालात ये हैं कि जो लंबे कुब्बे, लंबे चौड़े जुब्बे कुब्बे लगाते हैं, दाढ़ियाँ हैं उनकी, और कौम के दरमियान जब जाते हैं तो दुर्वेश और फ़कीर बन करके जाते हैं। अल्लाह वाले अपने आप को दर्शाने की कोशिश करते हैं और हालात उनके ये हैं कि वो मुसलमान लड़कियों को जहन्नम में झोंकने का काम कर रहे हैं। लिहाजा मैं इसमें चंद गुजारिशात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये देखिए, जितनी भी ख़राबियाँ हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार ये चीज़ें भी हैं और हम भी खुद ज़िम्मेदार हैं। शुरुआत इन मामलात की ज़्यादातर जैसे कि मामलात पेश आए वो यहाँ से होती हैं कि हमारे भी मामलात ये हैं कि जो इस्लाम का तरीक़ा है कि जब गैर हमारे घरों में आए, कोई अपनों के लिए तरीक़ा ये है कि जब आए तो वो आकर के दरवाज़े पर सलाम करें, फिर इजाज़त चाहें, उसके बाद में आप उनको अपनी बैठक में बैठाएं। मगर हमारे मामलात ये हो गए, इतने आज़ाद माहौल बना लिए कि गैर मुस्लिमों से अच्छे रवाबित हैं, ताल्लुकात हैं। अब तो किसी ने बहन बना रखा है, किसी ने कुछ बना रखा है, और क्या ये तो हमारे भाई जैसे, ये तो बहन जैसी हैं, तो सहेली हैं, और वो आते हैं डायरेक्ट घर में और इस तरह से फिर वो उनके कनेक्शन में आ जाते हैं। इस तरह से भी बहुत से वाक़यात ये सामने आ रहे हैं। लिहाजा हमें ज़रूरत इस बात की भी है कि हम अपने घरों पर भी कंट्रोल करें। दूसरी बात यह है कि पर्दे का एहतमाम करना पड़ेगा और इसका आदी आपको अपनी बच्चियों को बचपन से ही बनाना पड़ेगा। हमारे जो स्कूल हैं, मैं चाहूँगा कि आपसे गुजारिश करूँगा कि लड़कियों को लड़कियों के ही स्कूल में पढ़ाएं और लड़कों को लड़कों के स्कूल में। मखलूत जहाँ पर या पढ़ाइयाँ हो रही हों, लड़के लड़कियाँ, वहाँ पर हरगिज़ ना पढ़ाएं। क्यों? इसलिए कि बचपन से जब उनकी आदत ये बन जाएगी कि वो तो बचपन से लड़के लड़कियों के साथ रहते चले आएँ, तो फिर बड़े होकर के भी फिर वो इस माहौल के आदी बन जाएंगे और फिर बड़े जब हो जाएंगे तो उसके बाद में इसका रिज़ल्ट फिर अच्छा नहीं
नहीं आएगा। इसी तरीके से हमें ये चाहिए कि हमारे जो फंक्शन होते हैं उसमें भी जो मखलूत तकारीब होती हैं तो उसमें भी हम इस तरह से पेश ना आएँ, बल्कि हमारे जो फंक्शन हो, शादी ब्याह के प्रोग्राम हो तो मर्दों का यानी जेंट्स का अलग हो और लेडीज़ का एहतमाम अलग हो, वहाँ से भी ये खराबियाँ पैदा होती हैं। दूसरे ये है कि आप ये समझिए आज बहुत से लोग इस तरह की बातें उठाते हैं कि मदारिस इस्लामिया में असरी तालीम ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, और ये वो लोग उठाते हैं जिन्हें सुबहाना नहीं आता, जिन्हें नमाज़ पढ़ना नहीं आती। मैं ये कहूँगा कि अब हमको चाहिए, हम उलमा को जो ज़िम्मेदार लोग हैं, हम स्कूलों के दौरे करें, ख़ास करके जो मुस्लिम स्कूल हैं वहाँ पर जाएं जहाँ पर हमारी बहन बेटियाँ पढ़ती हैं, और वहाँ पर उनसे टाइम लें जो वहाँ के प्रबंधक हों, महीने में 15 दिन में, और जाकर के वहाँ पर ईमान के उन्वान पर, उसकी अहमियत के उन्वान पर जाकर के तकरीर करें, तबलीग करें। इस अंदाज़ में भी मैं समझता हूँ जब हम समझाएंगे ईमान की अहमियत तो इसके भी अच्छे नताइज सामने आएंगे। बहरहाल जो भी मामलात ये सामने आते हैं इसमें जहाँ वो दूसरे हमको, हमारी बहन बेटियों को लूटने के चक्कर में हैं, उनकी इज्जतों को नीलाम करने में लगे हुए हैं और उनके तो खुले एजेंडे हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं इसमें ज़िम्मेदार हैं। हमें एक्टिव रहना चाहिए। बस हमें क्या करना है, हमें शरीयत के दामन से वाबस्ता हो जाना है। इसी में हमारी आफियत है, इसी में हमारी इज्जत है, हमारे ईमान, हमारी नस्लों के ईमान महफूज रह सकते हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमारी नस्लों के ईमान व अक़ीदे की हिफाजत फरमाए। हमारी बहन बेटियां जो मुर्तद हो चुकी हैं उन सबको हिदायत अता फरमाए। जो अभी इन बातों को नहीं समझ रही हैं उनको दीन की समझ अता फरमाए, अक़्ल सलीम अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।